I is equals. Okay. Question number 9. What we have to find? Current. हम बोलिए. What were you telling? Sir, I was I saying you can use Q is equals to I is equals to Q by T. Okay. T is not given. Right? No, sir. Q is But given. 1 by T is given. 1 by T. हाँ, one complete circle के लिए it will be one time period. तो इसको हम Q by T लिख सकते हैं. That is frequency. 1 by T लिख सकते हैं. That frequency and it will be E. Q is E. Now we can multiply both. 1.6 mod में लेना है, minus में लेना है. Minus 19 frequency is 5 into 10 power 15. 8 into 10 to the power कितना आ रहा है बोलो? -3. -4. -4 लिखेंगे तो 0.8 मिली एम्पियर कर सकते हैं इसको. B option. All right. Next one is this. Again, direct question. Nothing much to do here. इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं. I is equal to what? I is equal to Q by T. Q by T and then The Q is equal to NE. Q is equal to N. That's all. है ना? ये आ जाएगा. Next one. Nichrome wire of 50 centimeter long and 1 square millimeter cross section carries 4 ampere when connected to 2 volt. The resistivity of nichrome. How to get it? Direct again. No much problem should be there. सर ओम्स लॉ लगाएंगे तो Ohm's law से क्या फॉर्मूला लगाते R मिल जाएगा. V is equal to IR. R is equal to V is equal to IR or R is equal to rho L by A. Put all the values. That's all. V is equal to IR and R is equal to rho L by A. सारी वैल्यू पुट कर दो. V की वैल्यू पुट कर दी, I पुट कर दिया, रो निकालना है, L पुट कर दिया, A पुट कर दिया. ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. मिली स्क्वायर मिलीमीटर 10 to the power -6 हो जाएगा. All right, next one. Sir, option B. Option B. Length half again. No. How? How option B? Sir, as resistance is directly proportional to length. Recast है ना, recast. Recast में क्या रहेगा? रहेगी तो एरिया भी बदलेगा ना. एरिया ऑफ क्रॉस Recast में क्या किया है? Okay, recast में क्या मतलब होता है? Recasting or stretching or compressing. In all the three cases, volume remains constant. Therefore, if length changes, area of cross section also changes in order to
in order to keep the volume constant. तो लेंथ हाफ हो गई तो एरिया डबल हो जाएगा. ठीक है. Now you tell me the answer. R/4. ऑप्शन ए R/4. R/4 हो जाएगा. सी या सोल्यूशन निकल से. Recast and stretching and compressing. If length goes up, area becomes twice. The new resistance will be rho L/2 upon 2a. तो R/4. Rho L/a आ जाएगा और 4 बच जाएगा. Rho L/a will be the initial resistance. Getting it? Next one is which formula? VD is equals to I upon NEA. I is equal to NAVD. उसमें put कर दो सब value. E is the charge. Charge you have to remember how much is the charge. 1.6 into 10 to the power minus 19. What is this? This is I is given. Okay, I is equal to NAVD. तो E तो constant है, ये तो learn करना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4. 4 में से 3 दिए होंगे. I दिया है, A दिया है, N दिया. This is N. फिर इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. हाँ, ऐसा में दिया है, नो प्रॉब्लम. Don't have to convert anything. Tejas, Yes, are you there? Tejas, are you there in the class? यस सर. बेटा आप JEE के लिए हो आप? नो सर. तो फिर आज JEE नहीं बेटा? यस सर. आई या Those who are registered for JEE class or NEET, they are supposed to attend. All right. Anybody else? बाकी सभी हैं? Okay. Next one is question number 14. देखो क्या है? कार्बन रजिस्टर. इसमें क्या आएगा? डू यू रिमेम्बर दैट सीक्वेंस? BB Roy of Great Britain. First one. Last one is white. White means 9. 9 में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है 9 का, है ना. ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. नन ऑफ दिस नहीं है ना. व्हाइट क्या होता है? 9 से स्टार्ट होता है. यही होना चाहिए आंसर. एनीवे, ब्राउन इज स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक. ब्लैक के बाद ब्राउन है. ब्लैक इज 0. ब्राउन इज 1. रेड इज 10 to the power BB Roy. 10 to the power 3 हो जाएगा ये. 3 मीन्स किलो. प्लस माइनस नहीं लिखा इन्होंने. प्लस माइनस भी होना चाहिए. एनीवे, सिल्वर का क्या होगा? किसी में भी वो नहीं लिखा टॉलरेंस. एनीवे, नियरेस्ट आंसर इज 9. डी ऑप्शन है. ठीक है. कभी कभी एक ही डिजिट से काम चलेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में to save your time, moment you see even one of the, इसमें one of the even if you don't know the full sequence, but last one was white and white was 9, है ना? That was enough to get the answer. All right. Okay.
क्वेश्चन नंबर 15 सेम है क्या फिर से जो ऑलरेडी दिया था? हाँ, we did similar to the 8 masses दिए थे ना, और लेंथ का रेशियो, तो masses को एरिया क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट करना है. Mass is equal to volume into density, then area of cross section is directly proportional to m by l. तो a की वैल्यू पुट कर दी m by l, तो ऊपर l स्क्वायर हो जाएगा, नीचे m. अदर टर्म्स विल गो, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी विल गो. यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी को हम सिंबल चेंज कर दें ना, d कर देते हैं, रो डैश कर देते हैं इसको, क्योंकि रो किसका सिंबल हमने सीखा है इसमें? रो इज व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है ना, और यहाँ Yes. पे रो फिर से डेंसिटी. डेंसिटी का भी रो लिखेंगे तो यू मे हैव कंफ्यूजन, इसलिए सिंबल चेंज कर दिया करो, बिकॉज बोथ हैव द सेम सिंबल. व्हेन दे कम टुगेदर देन यू मेक इट डैश और प्राइम समथिंग. दिस वाज डन ऑलरेडी, सिमिलर क्वेश्चन 8th. व्हाट अबाउट दिस? Lift velocity of, again with same formula. Which formula? I is equal to NAVDE. I is equal to NAVD से हो जाएगा. If both radius and currents are double, तो VD को अलग कर दो. VD is equal to I upon NA. तो ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. I को क्या किया है? डबल, और करंट को भी, रेडियस को भी डबल किया. क्या आंसर होगा फिर? V by 2. V by 2. रेडियस लेवल, हाँ, रेडियस लेवल किया क्रॉस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा पहले ना. यू हैव टू राइट पाई आर स्क्वायर, तभी तो ये ऊपर 2 आएगा, नीचे 4 आएगा, तो 1/2. तो वेलोसिटी विल बी हाफ. हाफ मीन्स B. Okay. All right. What about this question? डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है. Wire of radius R has resistance capital R. If it is equal to the radius of 3R/4, its resistance becomes compress हो गई, stretch की जगह compress हो. Anyway, do you remember the direct formula in this case? If yes, you can put it directly. इसको याद है? Otherwise, you go back to the basic. Density remains constant. Initial volume is equal to final volume. A1 L1 is equal to A2 L2. A को हम क्या लिखेंगे? Pi R square. R1 square into L1 is equal to R2 square into L2. Dash कर लो. R dash square into L dash is equal to R square L. या फिर if you remember the formula क्या था वो? R dash is equal to R upon n to the power 4. n कितना है यहाँ पर? 3/4 का पावर 4, तो 4 की पावर 256 ऊपर आ जाएगी. 3 की पावर 4 मीन्स 81. तो R dash is D option. And if you are remembering this, fine. Otherwise, solve it. N is 3/4. रेडियस कितनी हो जाती है? अच्छा, स्ट्रेचिंग ही है, रेडियस कम हो रही है तो नो प्रॉब्लम. तो स्ट्रेचिंग के लिए भी हम रेडियस का फार्मूला लगा सकते हैं. कॉम्प्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग के लिए अगर रेडियस का पता है लगा सकते हैं, या फिर गो बैक टू द बेसिक जैसे सॉल्व किए. अगर रेडियस 3/4 हो रही है, ओके,
वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर एल डैश। तो हमें यहाँ से आर डैश की वैल्यू पुट कर दो, कितनी ये वाली यहाँ पे पुट कर दो, स्क्वायर है 9/16 हो गया, आर डैश को एल डैश की वैल्यू मिल गई 16/9 एल, बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आर डैश इज इक्वल टू रो तो चेंज होता नहीं, एल डैश और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई भी रहेगा ना। तो ये कितना आ रहा है 16, 256 आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, रो, ओके इसको अलग कर लो, रो एंड रो, this will be rho L upon pi r square. This will be initial resistance. ठीक है, clear? Yes, sir. Similar question we did it in the class. It was given in homework. Radius becomes n times, है ना, ऐसा दिया था मैंने। तो n times what? 3/4. N is 3/4 here. So you could have done directly, but again I told you from beginning. What about this question? ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो इसको। Two wires of same material have the length L and 2L and cross-sectional 4A and A respectively. The ratio of their specific distance. बोलो क्या आएगा इसका? D 1:1. 1:1. Why 1:1? The same material. Resistivity Same does material है, one dimension. same, independent of dimension, depends upon nature and temperature. The nature of material doesn't change, है ना? So 1:1. All right. So don't just get confused, कि sir, don't start calculating it. Independent of dimensions. What about this? Question number 19. How to get this? Sir, dq equals to I dt and then integrating. I की जगह dq/dt लिख देंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, dt इधर आ जाएगा। जब हमें टोटल निकालना पड़ता है ना, समेशन होना चाहिए, लिमिट 0 to 5। dq/dt लिखा, dt इधर भेज दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, dq विल बिकम q टोटल चार्ज एंड लिमिट 0 to 5। कितनी देर तक है? 0 से 5 तक। तो t का t²/2 एंड हियर 1 का t आ जाएगा ना, 3 बाहर आ जाएगा। पुट द लिमिट एंड सॉल्व इट। Any difficulty here in understanding? Just tell me. This much you are supposed to do.
independently. Sometimes you have to find out the limit also, पता है? They'll tell you find out the charge till current becomes 0. तो टाइम निकालना पड़ेगा पहले. दिस इज डन, पहले ये देख लो. डन. Yes, sir. ओके देखो, सपोज ऐसे दे देते, यहाँ पे माइनस देते, बोलते फाइंड आउट द चार्ज टिल करंट बिकम 0. तो आई 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 1.2 t माइनस 3. तो t इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.2. तो t मिल जाता है हमें 3 अपॉन 1.2. टाइम मिल जाता 2.5 सेकंड. तो लिमिट 2.5 सेकंड पड़ते पुट करते. तो यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट लिमिट, मतलब इनडायरेक्टली टाइम आल्सो यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन यू हैव टू फर्दर सॉल्व. इसमें टाइम दे दिए, इट इज सिंपल. क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके. So next one is if resistance of the conductor is this much at 50 and 7 at 100, then mean temperature coefficient of resistance. क्या निकालना है इसमें? What is this? Alpha. Alpha था. Alpha. Which formula? Direct है. क्या formula था? R. R2 is equals to R1 into 1 minus alpha into T2 minus T1. Okay. Put the value direct here. Yes, you will get the answer. कितना आ रहा? 0.008 आ जाएगा. Next one. 21. नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है ऐसा कुछ. इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डिक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो which of the following remains constant? Either current, electric field and drift velocity, or drift velocity only, or current and drift velocity, or current only? Which is the right answer? The current only. Current only. Okay, drift velocity में area of cross section आ जाता है ना. I is equal to NAVD. Current वाला फार्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा तो वो फार्मूला लगाना पड़ेगा. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो चेंज है ना. इसमें देखो, इवन इफ यू नो वन ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही पता है, तो यू कैन मैनेज ऑल द पार्ट्स है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सभी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है ही, तो ओनली करंट. ठीक है. तो दैट्स ऑल. व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? अगेन सेम फार्मूला. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ resistance or resistivity. R2 is equal to R1 1 plus alpha into change of temperature. 3 times हो गया. R2 is 3 times of R1.
नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट नहीं है सब. What about this question? Are you there? Yes, Yes. sir. Okay, ये क्वेश्चन बताइए. VI graph for the conductor at temperature T1 and T2 are shown. T2 minus T1 is proportional to what? T2 of course will be higher than. यहाँ पर V दिया देखो. V is given here on the y-axis और I है. So resistance which resistance more will be more? T1 पे or T2? T2 पे. Because यहाँ पे भी दिया जो हम लोग क्लास में क्वेश्चन किया था. V was this side, I was this side, therefore this temperature was larger. Whereas here is V here. How can we see T2 is greater? बोलो. How can you say T2 is greater? Because more resistance. यहाँ से resistance निकाल के देखो यहाँ से. I fix कर दो. और ये V2 हो जाएगा ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं V1. R is equal to V by I. V2 is greater than V1. Therefore R T2 greater. Therefore R resistance is greater at T2. Therefore T2 greater than T1. T2 इसीलिए ओके यहाँ से देखो T2 minus T1 पूछा उन्होंने. इसका मतलब T2 is greater. तो यहाँ पे हमें ग्रेटर नहीं पता करना है, हमें तो T2 minus T1 पता करना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? So how to get which formula? Which formula? R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T वो वाला. तो उसके बाद R2 will be directly R will be directly proportional to 10. R2 directly proportional to 10 theta. यहाँ पे R dash कर लो. R2 का चक्कर मत रखो. यहाँ पे T1 का कर लो. देखो ऐसे कर लो. R is equal to R0 1 plus alpha delta T. ठीक है. R0 is the temperature at 0 degree Celsius. ऐसे कर लेते हैं. तो भाई R क्या होगा? 10 theta will be directly proportional to slope is directly proportional to 10 theta. देखो 10 theta कितना होगा? R होगा रेजिस्टेंस है ना. Are you getting? 10 theta is how much? 10 theta is equal to V by I. V यहाँ पर है, I यहाँ पर. That is R. और R directly which is directly proportional to R0 1 plus alpha delta T. ऐसा ठीक है. तो लिख लो उसका फार्मूला. 10 theta 1 का 10 theta का लिखो. और ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा. तो 10 90 माइनस थीटा का लिखो. which will be cot theta. सब्ट्रैक्ट कर दो. cot theta राइट साइड में कैंसिल माइनस करेंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे. टर्म्स विल गेट कैंसिल. वैसे भी प्रोपोर्शनल है. R0 विल गेट कैंसिल. अल्फा भी प्रोपोर्शनल में चला जाएगा. तो यू विल बी लेफ्ट विद T2 minus T1 only. So cot theta minus tan theta. So let's see the solution. देखो
पहले इक्वेशन क्या लिखे हमने, ये आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो tan थीटा विल बी R1, यहाँ से दो टेम्परेचर यहाँ पे, तो tan थीटा इज R1, R1 विल बी R0 1 प्लस अल्फा T1, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट T2 के लिए क्या आएगा, कॉट ओके tan थीटा tan 90 माइनस थीटा R0 1 प्लस अल्फा T2। तो डिफरेंस कर दो, ये कॉट हो जाएगा, कॉट माइनस 10 विल बी, ये सब कैंसिल हो जाएंगे अल्फा भी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में T2 माइनस T1 बचेगा राइट साइड में। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। लेफ्ट साइड सिंपलीफाई कर लो, कॉट थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर आएगा, इसमें से एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। राइट साइड में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद लेफ्ट साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin cos, हाँ cos थीटा बाई sin थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा, एलसीएम ले लो, नीचे sin थीटा cos थीटा आ गया, ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विच इज cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखने, 2 हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है, cos cos, अरे कुछ मिस्टेक हो रही है, cos 2 थीटा cot, हाँ तो रहा है, दिस इज cot 2 थीटा, ये आंसर है सी। देखो सोल्यूशन, कैन यू सी इट। तो दूसरी इक्वेशन cot की बनी, उसमें T2 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस कर दिया 10 माइनस cot, cot माइनस 10 करते तो फिर हमारा माइनस का बाद में, ठीक है माइनस बाद में कर लेना, इधर शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये हट जाएंगे सब, यहाँ पे 2 कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ये माइनस आएगा, इधर भी इधर माइनस को इधर भेज देंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माइनस cos थीटा ऊपर वाला, माइनस आई मीन cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा आएगा ऊपर। Okay, just let me put it properly. Also, two minus one. All right. Slow down. यहाँ पे 2 minus 1 किया हमने,
ये कैंसिल हो जाएंगे, आर नॉट कैंसिल हो जाएंगे माइनस करने से। यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया है, तो 2 यहाँ से, एक 2 इधर आएगा, एक 2 इधर आएगा, तो 2 कांस्टेंट में चला जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट वन, ओके डन, ये हो गया। Yes, sir. इजी है ये, 24th we did it in the class also। कौन सा सीरीज में देख रहे हैं, ये वाले है ना, 6 हो जाएगा ये, एंड इसके साथ पैरेलल हो जाएगा 3 and 6 इन पैरेलल 2 हो जाएगा। नहीं 30 है ना, 60 and 30 20 हो जाएगा ये। तो I will be V by R, so 2 by 20, that's 1 by 10, C option। No problem. Next one we'll do okay, let's see the next one। What about 25th? How to do this question? ये तीनों पैरेलल में हैं। इनको इधर लगा दो, इसको यहाँ से कट करके ऊपर लगा दो ऐसे। 2 2 2, ये तीनों पैरेलल में लिख जाएंगे, है ना। तो दिस एंड दिस इन पैरेलल, 2 by 3 हो जाएगा। इसके साथ फिर सिंगल लूप बन जाएगा, ये सब हट जाएंगे अभी, ये 2 by 3 हो जाएगा। फिर इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे, एक ही लूप बचेगा, 2 + 2 by 3 कितना आएगा, 8 by 3। नेट रेजिस्टेंस 8 by 3 हो गया, तो I will be V by R 2/8 by 3, 3 ऊपर आ गया, 3/4, B ऑप्शन। समझा क्या बताया मैंने? ये दोनों पैरेलल में है इसके साथ, मतलब तीनों पैरेलल में, 2 by 3 आ गया। फिर सिंगल लूप बन जाएगा, ये हट जाएंगे, ये एक ही लूप बचेगा ये, तो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। फिर जो भी करंट यहाँ से चलेगा वो सब एमीटर से होके आएगा।
Can you see? Are you there? Yes. Yes, sir. Could you get this question? ये इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया इसलिए, अदरवाइज अगर ये ऊपर ही लगाते तो तुम्हें समझ में आता. It was an okay question, not that parliament. तो इन तीनों का 2/3 वाले फार्मूले से R/n से R/2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 है 2/3. नहीं तो वैसे कर लो 1/RP will be 1/2 plus 1/2 plus 1/2. तो 3/2 पलट जाएंगे, RP will be 2/3. Done. Yes, sir. Okay, we'll see the next one. Just throw down quickly. ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? Current of 2 ampere flows in the system of the conductors as shown. Potential difference VA minus VB. We did similar question in the class. Same method you follow and you get the right answer. सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? What to do first? दोनों ब्रांचेस में करंट निकालना है ना, फिर ओम्स लॉ लगाना है. दोनों ब्रांचेस में करंट कितना कितना जाएगा? No, 1 ampere. How can we say? सर ऊपर और नीचे दोनों में सीरीज लगाएंगे तो सेम रेजिस्टेंस आ रहा है. ओके, ये 2 + 3 5 हो गया, नीचे भी 3 + 2 5 हो गया, तो 5 5 है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा. 1 एम्पियर हियर एंड 1 एम्पियर हियर. ठीक है, तो अभी
Can you hear me now? Yes, sir. Which question was going on? Sir, 26. Okay. Just a minute. Let me get connected first. It was done or it was incomplete? It was not done. Okay. Do it fast. क्या आंसर आ रहा? Complete it quickly. Okay, just a minute. Just a minute. Let me. क्या आंसर आया बोलो? Got the answer? Yes, sir. Yes, पहले sir. क्या किया था? करंट इक्वली डिवाइड हो गया है ना? करंट इक्वली डिवाइड हो गया तो 1 एम्पियर ऊपर 1 एम्पियर नीचे, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू आई आर। आई तो 1 है, आर 2 है, ये इक्वेशन आ गई। नीचे वाली ब्रांच के लिए वी डी माइनस वी बी, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। 3 है नीचे, सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली से, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे वी बी माइनस वी ए आ गया, यहाँ पे -1। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए इज -1, तो माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, तो वी ए माइनस वी बी इज +1। My question was this. Okay, now this is okay. My follow-up question was this. मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा दी हमने, करंट किधर फ्लो होगा, ऊपर या नीचे? Are you there? Yes, sir. यहाँ पे कनेक्टिंग Yes, वायर sir. लगा दी। In which direction current will flow? Up or down? Quick answer. Up. Why up? Up. Why up? Hello? Because resist upward. Because resist Sorry, because? upward. Resist. Because resistance is? Less. No.
That is not the right explanation. Anybody else? सबको क्वेश्चन समझ में आया? Sir, current will not flow. Okay. Anybody else? बहुत simple question है. You are not able to think in the proper direction. Very simple. अभी difficult question तो उसके बाद है. How much current will flow? That I will give you in homework. But पहले ये तो बताओ यार तुम लोग सही कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तभी तो आगे कर पाएंगे. कॉमन सेंस, लॉ ऑफ कॉमन सेंस. ये क्या मिला देखो, इस आंसर पे डिपेंड करेगा. देखो इसको ध्यान से. अप बोला किसी ने, अप और डाउन, पहले तो ये डिसाइड करते हैं. बोलो जल्दी से, फिर से रिपीट करो आंसर. somebody told up or down. क्या बोला था, फिर से बोलो. अप बोला था ना. इज इट राइट? अप और डाउन? अप राइट है कि डाउन? यहां से देखो ना इसको ध्यान से. आर यू नॉट गेटिंग द क्लू फ्रॉम हियर? बोलो जीशा. Down, because current moves from higher potential. Down, because Yes, current moves from very higher correct. potential So to A low is higher. potential. A is at higher potential by 1. जो भी B का पोटेंशियल है, A का उससे 1 हायर है. Whatever is there. तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है ना. तो A to B. ठीक है. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे. सेम क्वेश्चन कैन बी could have been asked in which direction current will flow. So you have to solve this much. You have to get whether A is at higher potential or B is at higher potential. बट उसके लिए सॉल्व नहीं करना पड़ता, बिकॉज हमें करंट पता था सेम है दोनों में. यहाँ पे कम ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस लेस है तो ड्रॉप कम होगा, यहाँ पे मोर ड्रॉप होगा. ए इज एट हायर पोटेंशियल. नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मच करंट विल कम फ्रॉम ए टू बी. बोलो, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है. इसके लिए यू हैव टू डू लॉट मेनी थिंग्स. कितना करंट, पहले कितना जा रहा था? ओके, हाउ मच वाज द करंट? 1 एम्पियर. 1 एम्पियर था, इधर भी 1 एम्पियर आएगा, इधर भी 1 एम्पियर था. नाउ हाउ मच करंट विल कम डाउन? हाउ टू गेट दैट क्वेश्चन? दैट इज रियली डिफिकल्ट पार्ट. डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, जस्ट थोड़ा सा लेवल, हाई लेवल क्वेश्चन है. यू एवरीबडी कैन मैनेज इट. थोड़ा सा इफ यू गिव डीप थॉट तो यू कैन गेट द हाउ मच करंट विल कम डाउन. बोलो कैसे कर सकते, कैसे कर सकते इतना बताओ. बिकॉज इसका आंसर तो नहीं निकालना पड़ेगा हमें, कितना करंट आएगा. देखो ऐसे कर सकते. डू वी हैव, डोंट वी हैव द टाइम? एंड थिंक अबाउट दैट. नेक्स्ट क्लास में यू रिमाइंड मी हाउ टू गेट द करंट. आर यू, इफ यू आर एबल टू गेट हाउ मच इज दैट करंट कमिंग डाउन, फाइंड, सॉल्व एंड सेंड मी. थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग चाहिए उसमें, स्लाइटली लॉजिकल थिंकिंग. यू कैन गेट इट इजीली. अगर तुमने इसका रीड्रॉ कर लो पहले डायग्राम, कनेक्ट, अगर हम यहाँ पे वायर लगा देंगे, ठीक है, तो सर्किट विल बी चेंजिंग. ऐसा हो जाएगा सर्किट. देखो आई एम गिविंग यू द क्लू हाउ टू गेट दैट. ठीक, ऐसा हो जाएगा बस. नाउ थिंग्स विल बी इजी. इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में आ गए. कितना हो जाएगा? पैरेलल में निकाल लो इसका. तो टोटल करंट अप्रोचिंग इज 1 एम्पियर, है ना. यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, इधर का भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. फिर से अलग अलग करंट निकाल लो, इधर का पैरेलल निकाल लो, और टोटल करंट तो वही रहने वाला दोनों में मिला के. आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस. पहले का तो सिचुएशन में पता ही था. अभी न्यू करंट कितना है? 3 एम्पियर में. सपोज पहले तो 1 था, तो वो पहले 1 था. अभी तुमने फिर से रीड्रॉ किया डायग्राम, नेट रेजिस्टेंस पैरेलल के निकाले, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला यहाँ से यहाँ तक. अभी है ना, ऐसे हो जाएगा. देखो, लिसन वेरी केयरफुली. ये पॉइंट ए एंड बी एक साथ आ जाएंगे, कनेक्टिंग वाला लगाना, और ये सी. यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो फिर से. टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट हमें पता है. फिर अलग से करंट निकाल लो बी ब्रांच में, है ना. सपोज बी ब्रांच में 1/3 आ गया, है ना. पहले कितना था? 1 था. यहाँ से 1 चल रहा था, 1/3 इधर चला गया, तो बाकी इधर आ जाएगा. आई डोंट नो कितना आएगा, बट कम आएगा, क्योंकि सम ऑफ द करंट इज कमिंग डाउन. तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा 1/3 या 2/3 और समथिंग. एनी रेशियो इज पॉसिबल. तो उतना माइनस कर दो उसमें से. ठीक है, तो इसमें ट्राई टू डू एवरीबडी, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सॉल्व करके भेजो, देखते क्या आंसर आ रहा है. ऐसा क्वेश्चन नहीं है इस पूरे असाइनमेंट में, बट इट इज
it is possible to be asked like this, JEE में particularly. ठीक है, तो do it, solve it and send. Got it? How much? क्या question है? If conducting wire is connected, conducting wire उसका resistance नहीं होगा, connected to AB, then how much current flows in it? How much current flows in it? This is your homework question today. Okay, shall I end it now? Are you any other difficulty? Bolo. End karo. Are you there?